Hello guys everyone, my name is Atharva and welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss about brachial plex. We are going to cover all the important topics which are most frequently asked in our examination. So let's begin with brachial plexus. So first of all, brachial plex. It is a plex of nerve. What do you mean by plex? Plex का मतलब होता है नेटवर्क. ये नर्व्स का नेटवर्क है जो कि फॉर्म हुआ है C5, C6, C7, C8 और T1 नर्व से वेंट्रल रैमा ऑफ C5, C6, C7, C8, T1 स्पाइनल नर्व से. ओके, तो ब्रेकियल प्लेक्सस के चार कंपोनेंट होते हैं. सबसे पहला रूट, ट्रंक, डिवीजन और कॉर्ड्स. हमारे पास 5 रूट्स है. मीन्स रूट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस आर C1, C5, C6, C7, C8 और T1. डिवीजन्स यहाँ पे 6 होते हैं और कॉर्ड्स टोटल 3 होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके डिटेल में जाने से पहले हम यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं. ये बहुत ही एक सिंपल और ईजीएस्ट डायग्राम है ब्रेकियल प्लेक्सस के लिए, जो कि आप एग्ज़ाम में निकाल सकते हो और बहुत ईजीली आपको याद आएगा. तो सबसे पहले हमें रूट्स निकालने C5, C6, C7, C8 और T1. सो C5 और C6 आगे जाके अपर ट्रंक बनाते हैं, C7 आगे जाके मिडल ट्रंक बनाते हैं और C8 और T1 आगे जाके लोअर ट्रंक बनाते हैं. सो देयर आर 3 ट्रंक्स, अपर ट्रंक, मिडल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक. सो रूट्स हो गए, ट्रंक्स हो गए. सो हेयर कम्स डिवीजन. सो हर एक ट्रंक 2 डिविजन्स देते हैं, एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन. दैट मीन्स एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक, anterior division of middle trunk, posterior division of middle trunk, anterior division of lower trunk, posterior division of lower trunk. So this is how there are total 6 divisions, and hence we move further to the chords. So there are mainly 3 chords of brachial plexus. First is lateral, medial, posterior. Lateral chord is formed by anterior division of upper trunk and anterior division of middle trunk. So the anterior division of upper trunk and anterior division of middle trunk forms the lateral chord. So what is the root value of the lateral chord? So it is having branches from upper chord and middle upper trunk and middle trunk. So the roots which forms upper trunk and middle trunk are C5, C6 and C7, and hence lateral chord has C5, C6, C7 as its root. So the medial chord is formed by anterior division of lower trunk, and as the lower trunk is formed by C8 and T1 vertebrae, it is having C8 and T1 form. So here comes the last one, posterior chord. So posterior chord जो होता है वो तीनों ट्रंक के posterior division से form होता है. So it is having all 5 what we call it ventral rami of all 5 spinal nerves. Okay, so this was a very simple diagram. आप ये डायग्राम एग्जाम में निकाल सकते हो और ये याद भी रखने के लिए आपको ईजी होगा, और इसके ऊपर से आप मैक्सिमम पॉइंट्स जो ब्रेकियल प्लेक्सस के होते हैं वो आप लिख सकते हैं. सो मूविंग फर्दर, वी आर गोइंग टू see towards my notes. These are my notes, you can have it, take a screenshot and you can write this in your exams and score maximum marks. So root, it is deep to scalenus anterior, and it is having 4 cervical vertebrae, C5, C6, C7, C8, and first thoracic vertebrae T1, and the next component is trunk. It is near posterior triangle. So there are mainly 3 trunks, upper trunk, lower trunk and middle trunks, as we have studied it now. And every trunk is having 2 divisions, anterior division, posterior division. Brachial plexus have mainly 3 chords, lateral chord, medial chord, posterior chord. ओके जी, यहाँ पे हमने पूरे के पूरे कंपोनेंट्स ब्रेकियल प्लेक्सस के डिस्कस कर लिए हैं. सो वी आर नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट द ब्रांचेस. सो ब्रांचेस फ्रॉम द ट्रंक are suprascapular and nerve to subclavius, and now infraclavicular branches which are more important. Every chord gives
different branches. Here is a mnemonic for every branches of different chords. तो lateral chords से जो आता है वो है lateral pectoral nerve, musculocutaneous nerve और lateral root of median nerve. Okay, so here mnemonic is LML. Okay, and next one is medial cord. Here is medial pectoral nerve, medial cutaneous nerve of arm and medial cutaneous nerve of forearm. So आपको यहाँ से ये याद रहेगा. So the lateral root of median nerve, तो ये lateral root है, तो इसका medial root भी होगा. तो medial root जो है वो medial cord में आता है. So medial root of median nerve is in medial cord and also ulnar nerve. So here trick is M4U, mnemonic for it. So posterior cord, तो हम बात करते हैं posterior cord की. तो यहाँ पे mnemonic है ulnar. So ulnar mnemonic है पर इसके अंदर ulnar nerve नहीं आती है. सो U से होगा अपर सबस्कैपुलर, L से होगा लोअर सबस्कैपुलर, N से होगा T होगा थोरैको डोर्सल, A से होगा एक्सिलर नर्व और R से होगा रेडियल नर्व. सो ये हो गए इंफ्रा क्लैविकुलर ब्रांचेस. मूविंग फर्दर हम यहाँ पे कुछ क्लिनिकल पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं. सो सबसे पहला क्लिनिकल पॉइंट है अब्स पाल्सी. सो अब्स पॉइंट जो होता है वो रीजन होता है अपर ट्रंक में. सो जो हमारी अपर ट्रंक होती है C5 C6 और आगे जाके बनाती है एंटीरियर पोस्टीरियर. तो यहाँ पे 6 नर्व जो है वो उनका मीटिंग पॉइंट होता है. एक होती है हमारी विच वी हैव डिस्कस्ड हियर, इट इज सुप्रा स्कैपुलर एंड नर्व टू सबक्लेवियस. सो ये 6 नर्व्स यहाँ पे मीट होती है. लेट मी ड्रॉ इट अगेन. C5 C6 suprascapular and nerve to subclavius. This is called as Erb's point. So 6 nerves meet here. 5th cervical, 6th cervical, anterior division, posterior division of upper trunk, suprascapular, nerve to subclavius. So at this region जब यहाँ पे डैमेज होता है और या फिर एक्सेसिवली एंगल बेंट होता है, जब हमारा हेड और शोल्डर जो है वो एक्सेसिवली बेंट होता है, यहाँ पे कहाँ पे हम गिर जाएंगे, ट्रॉमा हो जाएगा, तो उस समय पे यहाँ पे लॉस ऑफ सेंसेशन होता है आउटर एस्पेक्ट ऑफ आर्म. जो ये अपर ट्रंक जो है वो आगे जाके लेटरल कॉर्ड बनाती है. अलग अलग कॉर्ड्स में बनते हैं. ब्रैकियल प्लेक्सस पूरे हमारे आर्म को सप्लाई करते हैं. सो आगे जाके आउटर एस्पेक्ट ऑफ आर्म पे हमारे सेंसेशन लॉस हो सकते हैं. और जो मसल्स पैरालाइज्ड होंगे वो होंगे डेल्टॉइड मसल, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरेस मेजर, बाइसेप्स ब्रैकियल. ये 5 मसल्स हमारे पैरालाइज होंगे. सो नेक्स्ट केस जो होती है वो है क्लम्स पैरालिसिस. तो ये लोअर प्लेक्स इंजरी है. इसका मतलब C8 और T1. सो इट इज़ व्हाट वी कैन से, ये जो इंजरी है ये हमारे लोअर ट्रंक में हमको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी. सो इट इज़ कॉज्ड बाय हाइपर अबडक्शन ऑफ आर्म. जब हम हमारे आर्म को बहुत ही ज़्यादा हाइपर अबडक्शन करते हैं तो इसकी वजह से ट्रॉमा यहाँ पे हो सकता है. और इस केस के अंदर सारे के सारे जो हैंड के हमारे इंट्रेंसिक मसल हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. और इसका क्लिनिकल फीचर भी है क्लॉ हैंड, जहाँ पे हमारे फ्लेक्सर्स और ऑल इंट्रेंसिक मसल्स ऑफ हैंड जो है वो पैरालाइज हो जाते हैं. सो लॉस ऑफ सेंसेशन हियर आल्सो वी कैन सी. यहाँ पे भी हमें लॉस ऑफ सेंसेशन केस देखने को मिलेगी, जहाँ पे हम मीडियल बॉर्डर ऑफ फोर आर्म एंड हैंड, इस रीजन में हमारे सेंसेशंस लॉस होंगे, मतलब सेंसरी नर्व जो है हमारे डैमेज होंगे. सो जो हमारी पहली डायग्राम थी वो तो बहुत अच्छी थी, जो कि हम एग्ज़ाम में निकाल सकते हैं, पर आप एक डायग्राम मत निकालना. अगर इसके ऊपर 6 या 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आ गया तो आपको 2 से 3 डायग्राम निकालने पड़ेंगे. सो आप ये भी डायग्राम निकाल सकते हैं जहाँ पे हम रूट्स C5 C6 C7 C8 और T1 है, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड्स, ये आप डायग्राम निकाल सकते हैं. और ये डायग्राम आपको समझने के लिए जो कि मैंने ग्रेज एनाटॉमी बुक से लिए, ये लैटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड, दिस यू कैन सी लैटरल कॉर्ड, posterior cord which is behind in posterior region, and after that you can see this is a medial cord. So this is how the brachial plexus is present, coming from the C5 C6 C7 C8 and T1. Here it comes and supplies all this region. So this is all brachial plexus. Hope you understand it. I have tried to explain, मतलब मैंने पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. पूरे 10 मिनट की वीडियो बन चुकी है. सो आप ये ब्रैकियल प्लेक्सस कर सकते हो और आपको इस टॉपिक की आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है.
Thank you for watching this video. You can like and subscribe my channel.